इधर करंट भी नहीं है, लैपटॉप भी चार्ज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिकल भी ऑन ऑन क्लास है, तो कैसे मेरे होगा पता नहीं। कॉलेज में इधर डे बिफोर यस्टरडे तो मैं इधर आ गया इस डे को। पहले तो घर में था। मोर देन 3 आवर्स करंट नहीं है यहाँ पे। So let us quickly start our last portion. So देखो यहाँ पे, so we'll show graphical explanation for magnitude के लिए और फेज के लिए। ओके, तो what was the value AK value का कहाँ कहाँ था? So we had AK value A2 A minus 2, correct? A2 A minus 2, okay. Then A5 A minus 5. So we have plotted here AK, simple AK plot. 5 में k is equal to 5 में minus 2j, k is equal to minus 5 में plus 2j. So I have shown here. और 2 में ये वाला है minus 2 में प्रेजेंट है, देखो 2 में 1 minus 2 में 1, so ये 1 1 है, and जो 0 में ये 4 है, ओके 0 में ये 4, so you can write here 4 also, okay. So these much your AK values. Now we'll go for magnitude and phase plot, okay, magnitude and phase plot. So we'll take one table here, we'll make one table here. So AK values here A0 A2 A minus 2 A5, okay, A minus 5, all these coefficients are present here. तो उसका वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यूज क्या है, A0 का 4, A2 का +1, A minus 2 का +1, A5 का -2j, A minus 5 का +2j, these are values. So मैग्नीट्यूड क्या होगा, so 4 1 1 2 2, so मैग्नीट्यूड हो गया, ओके. सो मैग्नीट्यूड मिल गया हम लोगों के पास. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फेज एंगल, एंगल AK, मॉड AK मिल गया, एंगल AK. सो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये क्या होगा -90 डिग्री होगा, 2j है, ठीक है. ओनली द कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसलिए 90 डिग्री माइनस है, इसलिए -90 होगा. ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, ओनली कॉम्प्लेक्स पार्ट है, सो इसलिए 90 डिग्री होगा, एंड पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए +90, ठीक है. So we got -90, we got +90, so these are the, and 0 0 0, so all these are the phase angles, okay, these are the phase angles. So and these are the amplitude. Now we'll plot magnitude and phase, okay. So this is the magnitude spectra, because in this direction we are plotting frequency, so frequency analysis है, इसलिए we are writing it spectra, magnitude spectra. सो कहाँ कहाँ है, -2 में मैग्नीट्यूड 1 है, +2 में मैग्नीट्यूड 1 है, 3 में 0 है, 4 में 0 है, एंड 1 में भी 0 है, ओके. -1 में भी 0 है, -3 -4 में 0 है, -5 में 2 है, +5 में 2 है. सो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा, एंड इट इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ओके. So you remember magnitude spectra should be always an even function of k. You remember, दिमाग में घुसा दो अभी अभी, ठीक है. So magnitude spectra will be an even function of k always, okay. So देखो why it is, +2 में जो होगा -2 में भी होगा, +5 में जो होगा वैल्यू -5 में भी होगा, so that's why it is called even function, okay. So पॉजिटिव होगा always. और एंगल को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, फेज स्पेक्ट्रा. सो देखो फेज स्पेक्ट्रा कहाँ कहाँ है, 0 वैल्यूज है यहाँ पे, 0 0 0, ओनली 5 वैल्यू, के जब 5 होगा, के जब -5 होगा, तब हम लोगों के पास 90 डिग्री फेज शिफ्ट है. सो +5 में -90, ये नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट बिलो होगा, और -5 में क्या होगा, +90 होगा. सो दैट इज द केस. सो दैट्स व्हाई one of you have asked me, so whether sir will make it 2/j or not. So
if you make it j upper side, so in that case it will be better for you for finding out the phase and magnitude. So in that case you can manage in that way, otherwise it. So that is the phase spectra, and I've written here the phase spectra is always will be an odd function of k. So it will be odd function. देखो इधर minus to ये plus. So you people know that x of minus t is equal to minus of x t जब होगा, and that is called odd function. So what we got here, the magnitude spectra would be always an even function of k. Phase spectra would be always an odd function of k. You people remember all these things. And we got the idea how to get coefficients, how to plot simple AK plot, how to represent magnitude spectra, how to represent phase spectra. So that much I can explain today. Okay, so tomorrow we'll have one more class where there we'll go further. So अब तक जो मैंने बोला था लोगों को, so if you have any doubt, so you can raise your questions. Otherwise we leave the session because after that my laptop will automatically shut down. So thank you for your patience. सर डाउट है सर। बोलो सर फेज एंगल कैसे निकाले वो वाला थोड़ा बताइए ना फिर से। अच्छा हाँ देखो ये रियल है 4 है तो इसका तो 0 ही होगा, नो फेज एट ऑल, ठीक है। सो इसलिए ये 0 0 0 हो गया, ये -2 है, -2j है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सपोज मान लो तुम्हारे पास x प्लस ij है बा yj है, मान लो तुम्हारे पास x प्लस jy है। सो थीटा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x, x प्लस jy लिख लो कॉपी में, x प्लस jy है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, z इज इक्वल टू x प्लस jy। सो एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब एंगल के लिए मैंने बोला, क्या बोला, थीटा, फेज एंगल थीटा, थीटा क्या होगा, और एंगल ऑफ जेड क्या होगा, tan इनवर्स y बाई x। ओके, सो x यहाँ पे x का रियल वैल्यू है और y तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है देखो, रियल पार्ट नहीं है, 0 है। सो tan इनवर्स -2 बाई, सपोज मान लो -2 बाई 0 है। सो tan इनवर्स इंफिनिटी, सो tan इनवर्स इंफिनिटी, इंफिनिटी 10 का वैल्यू इंफिनिटी कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। 10 का थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है वो tan थीटा इंफिनिटी हो जाते हैं, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए -90। फिर भी यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट 0 है, 0 प्लस 2j, सो tan इनवर्स क्या होगा, 2 बाई 0 होगा, सो समथिंग बाई 0 इज इंफिनिटी, सो tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी, सो दैट इज प्लस 90 डिग्री होगा। समझ गया ना। सो फॉर्मूला क्या है, x प्लस जे वाई, इन दैट केस थीटा शुड बी tan इनवर्स y बाई x, y बाई x, y का वैल्यू इधर है। सो जब तुम्हारा रियल टर्म नहीं होगा ना वो 90 डिग्री होगा, दिमाग में घुसा लो, ये नेगेटिव होगा, या नेगेटिव होगा तो -90, प्लस होगा तो +90। ओके, so that means all are zero values here, we are getting only the phases। बोलो बोलो सर जो रियल वैल्यू है वो हमेशा 0 डिग्री रहेगा? नहीं, some cases we may have real term, हाँ, some cases we may have real terms, in that case we have to find out what is the phase angle। okay, जब 0 होगा तो जैसे 0, कि यहाँ पे भी हाँ बोलो। हाँ सर जैसे कि यहाँ पे वैल्यू लिए 4 1 4 1 फिर 1, तो ये सब तीनों का क्या है, 0 डिग्री है। तो इमेजिनरी वाला तो समझ में आ गया कि आप बोले कि हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री पे। तो अगर यहाँ पे जैसे मेरा ये जो रियल वैल्यू है मेरा 4 1, तो ये हमेशा 0 डिग्री ही रहेगा या फिर ये भी 90 या 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। जब ओनली रियल होगा ना तब 0 डिग्री होगा, और जब ओनली कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा वो 90 डिग्री। क्योंकि देखो ना यहाँ पे इमेजिनरी जे पार्ट 0 है, वाई पार्ट 0 है, वाई बाई एक्स, वाई 0 है, सो समथिंग 0 बाई समथिंग वो 0 ही होगा, इसलिए 0 डिग्री होगा, tan 0 का 0 वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, tan इनवर्स y बाई x, जब y 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, जब y तुम्हारा होगा
और x 0 होगा, सो समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी हो जाएगा। सो जब रियल पार्ट होगा, ओनली रियल पार्ट, तो फेज 0 होगा। जब ओनली इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो वो 90। ठीक है, यही बात है। तो हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये जो है देखो, ये प्रॉब्लम तुम घर में बनाओगे, ये लिख लो सब, लिखो, ये काम हम डिस्कस करेंगे। xt is equal to twice plus sin omega naught t plus twice cos omega naught t plus cos twice omega naught t। ओके, विदिन सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन ये है। xt is equal to twice sin omega naught t plus twice cos omega naught t plus cos twice omega naught t plus pi by 4 with omega naught is fundamental frequency। ये तुम लिख लो, then we'll end the session। सर ग्राफ का पोर्शन फिर से दिखाइए ना। कौन सा पर्सन बाबू? हेलो, हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। पहला वाला? सर जो ग्राफ वाला ग्राफ प्लॉट किए ना वो, हाँ हाँ थोड़ा पेज नीचे, ये यही वाला। बोलो, डाउट हो तो बोलो, डाउट हो तो बोलो। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले रहे थे। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉब्लम का, ये पूरा का। देन यू ट्राई इट एट होम and you can send me also personally। ले ली सर। Okay, and if you solve हाँ it, ले ली। you can send me to me। Okay, so thank you very much। Thank you, sir. Thank you all। Thank you, sir. Thank you।